Greetings to all. So this is our next lecture and this is the second part of the site investigation of groundwater exploration, and in which we will see the groundwater exploration in the geophysical method. So we have so many types of geophysical method by which we can get the exploration of the groundwater. So let's see one by one in the geophysical method of the groundwater exploration. So in the last video we have seen the surface method, in which we have seen the remote sensing techniques and the geological field work and the geological field technique. In remote sensing we have seen the aerial photographs and satellite photographs, and we have already discussed about the aerial photograph and satellite photograph and what are the advantages of the aerial photographs and satellite photographs. And in this next part, in the surface method, where we have seen the geological fieldwork, in which we have seen the preliminary geological fieldwork and the detailed geological fieldwork, so by which we can get the information about the groundwater exploration, and this is the very important point of the groundwater exploration. Now in today's topic we will see the subsurface method of groundwater exploration, and those subsurface method are geophysical method. So in which we will going to see or discuss about the site investigation by using the geophysical method. So what is the geophysical method? So geophysical methods comprises of measurement of signals from natural or induced phenomena of physical properties of surface formation. So basically it is a measurement of the signals by which we can get from the, or whether it is a natural or it is a artificial phenomena of the physical properties of subsurface formation. सो जियोफिजिकल मेथड जो होता है वो टोटली डील करता है हमारे जियोफिजिकल मेथड सिग्नल्स के थ्रू और मेजरमेंट ऑफ सिग्नल्स बाय, या तो ये नेचुरल हो सकती है या फिर आर्टिफिशियल हो सकती है। और ये जो फिनोमेना हम यूज़ करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर यूज़ करते हैं, मतलब सब सरफेस फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सब सरफेस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब हमारी अर्थ सरफेस का जो पैरामीटर्स होती है, जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें देखने के लिए मिलती है, उस बेसिस पे हम जियोफिजिकल मेथड के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जो जियोफिजिकल मेथड है वो चार बेसिक्स चीज़ों में डील करती है। तो पहला है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, सेकेंड है ग्रेविटी मेथड, एंड थर्ड है रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी मेथड और सिस्मिक मेथड, एंड लास्ट है हमारा रेजिस्टिविटी मेथड। सो these four methods are very important to identify the groundwater exploration, whether we can identify the groundwater or we can identify the oil or petroleum. So geophysical method एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम ना सिर्फ ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर करते हैं, बल्कि हम बहुत सारे विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड हम बहुत सारे ओर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वाटर ग्राउंड वाटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑयल और पेट्रोलियम और कोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So these are the very basic terms to identify the so many formation in the ग्राउंड सरफेस। सो जियोफिजिकल मेथड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज वी कैन easily identify the so many economical values of whether it is coal, mineral, oil or groundwater. So it is very useful nowadays, and various physical properties that are made use of in different geophysical techniques are electrical conductivity, magnetic susceptibility, density, elasticity and radioactivity. So basically जो हमारा geophysical method होता है वो ये सारी चीज़ों को जो different techniques होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड में, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को यूज करते हैं मैग्नेटिक मेथड में, डेंसिटी और इलास्टिसिटी को यूज़ करते हैं हम ग्रेविटी मेथड में, और रेडियोएक्टिविटी को भी यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में या फिर ग्रेविटी मेथड में। तो ये सारे जो टर्म्स है, जो डिफरेंट जियोफिजिकल टेक्निक्स है, जियोफिजिकल टर्म्स है, ये सारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन में। और ये जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन में 4 और 4 टाइप्स के मेन मेथड है बाय विच वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट, और वी कैन गेट
or we can explore our ground surface or earth surface. And those four geophysical methods are electromagnetic method, gravity method, seismic method, and electrical resistivity method. So in and to identify the groundwater, there are three basic method, that is gravity method, seismic method and resistivity method. So आज हम इस लेक्चर में थ्री टाइप के सब सरफेस मेथड को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला हम स्टडी करेंगे रेजिस्टिविटी मेथड को, देन मैग्नेटिक मेथड एंड देन सिस्मिक मेथड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर द ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, बट आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है. You just have to knowledge about the geophysical method, and there are three basic and important method, that is resistivity, seismic और magnetic. तो ये तीन important method है जिसके बारे में आपको information होनी चाहिए. So हम एज अ सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव और एज अ इंजीनियरिंग जियोलॉजी सब्जेक्ट नॉलेज के बेसिस पे हम ये थ्री बेसिक जियोफिजिकल मेथड को ही स्टडी करेंगे. अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्लोर द ग्राउंड वाटर, बट ये थोड़ा डीप में हो जाएगा. सो हम इसे स्किप करेंगे और तीन मेन मेथड्स पे फोकस करेंगे. सो लेट्स सी द फर्स्ट मेथड. सो जियोफिजिकल मेथड यूज्ड इन ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, एंड जैसे कि मैंने बताया कि जो थ्री मेन मेथड है जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन में यूज़ होते हैं, और पहला है इलेक्ट्रिकल मेथड, सिस्मिक मेथड एंड मैग्नेटिक मेथड. सो फर्स्ट वी विल सी द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड. So electrical resistivity method of prospecting include a large group of geophysical techniques employed for investigating the electrical field of the earth. So basically यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है अर्थ की उसको मेज़र करने की कोशिश करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द जियोफिजिकल टेक्निक्स, एंड इन विच सच फील्ड्स आर जनरेटेड इन द अर्थ नेचुरली और आर्टिफिशियली. तो जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रोसेस में या तो हम नेचुरली फील्ड जनरेट करते हैं या फिर आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरीज. And the distribution and intensity of the electrical field depend on the source of excitation as well as upon the electrical properties and geological structure in the region. So basically यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ग्राउंड सरफेस पे हमें अगर फॉर एग्जांपल हमें आइडिया है थोड़ा कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमें ग्राउंड वाटर मिल सकता है, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की फील्ड जनरेट करते हैं, और उसके लिए हम जियोफिजिकल का मेथड यूज़ करते हैं. और जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है या सबसे पहले फील्ड जनरेट करने की, फील्ड जनरेशन के लिए हमें या तो आर्टिफिशियली बैटरी का यूज़ करना पड़ता है या नेचुरली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ जियोफिजिकल टेक्निक हम यहाँ पे जनरेटर का यूज़ करते हैं, बैटरीज़ का यूज़ करते हैं फील्ड जनरेट करने के लिए. और जैसे कि मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है हम वहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड अर्थ सरफेस में पास करते हैं, and with the help of electrical field and with the help of different densities of the rock we get the different velocities and different electrical field anomalies to the ग्राउंड स्टेशन. सो जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस के नीचे बहुत डिफरेंट टाइप्स के रॉक होते हैं, हर डिफरेंट टाइप की लेयर होती है, और हमें हर रॉक की डेंसिटी अलग होती है, हर रॉक के पैरामीटर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज हर प्रॉपर्टीज़ का एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग होती है. सो जैसा कि हम फिज़िकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी मेथड में इलेक्ट्रिकल फील्ड और सरफेस के ऊपर जनरेट करते हैं, और जैसे ही हम विद द हेल्प ऑफ जनरेटर और बाउंड्रीज हम वो इलेक्ट्रिकल मेथड और इलेक्ट्रिकल रेज को अर्थ के थ्रू नीचे भेजते हैं या सिग्नल्स भेजते हैं, तो डिफरेंट रॉक होने की वजह से, डिफरेंट लिथोलॉजी होने की वजह से हर रॉक डिफरेंटली एक्टिव होता है, डिफरेंट रिएक्ट करता है, और हमें उस पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. ठीक है, तो जो हमारा जो पैरामीटर्स होता है, एक फील्ड जनरेट होता है, हम अर्थ सरफेस के ऊपर जनरेटर या बाउंड्रीज़ को चार एंगल में एक एंगल देकर, चार एंगल में चार साइड में या कॉर्नर पे हम बाउंड्रीज़ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, और हम वहाँ पे वायरिंग अटैचमेंट करते हैं. वायरिंग की
वर्किंग करते हैं और हम फील्ड जनरेट करते हैं, और उस फील्ड जनरेट में हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद वो डायरेक्ट अर्थ सरफेस के नीचे जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ लिथोलॉजी एंड सो मैनी अदर कंटेंट और वाटर क्वालिटी जो होती है सरफेस के नीचे, वो जैसे ही उस पर्टिकुलर एरिया पे या टच होती है एंड देन बैक टू दी ग्राउंड सरफेस। सो इस टाइप के हमको एक कंप्लीट ग्राफ मिलता है, और वो ग्राफ से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस के नीचे क्या है, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस के नीचे वाटर है या हार्ड रॉक है या सॉफ्ट रॉक है, और अगर वाटर है तो वो किस टाइप का वाटर है। और वन मोर थिंग कि अगर हम वाटर की जगह अगर ऑयल या पेट्रोलियम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमें ये भी इजीली आसानी से पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड। और जैसे कि हमें पता है कि वाटर बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रिक से, सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड इज़ वेरी बेस्ट मेथड फॉर द एक्सप्लोरिंग द ग्राउंड वाटर। सो यहाँ पे हम फील्ड जनरेट कर देते हैं, और जैसे ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी मिल जाती है उस पर्टिकुलर रॉक से और उस पर्टिकुलर एरिया से जहाँ पे हमें ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर करना है, तो वो ग्राफ रीजन में हमारा एक पर्टिकुलर ग्राफ बन जाता है, जो कि ग्राउंड स्टेशन पे जो मॉनिटर होता है, और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम उस ग्राफ को क्लेम कर लेते हैं, और उस ग्राफ की हेल्प से हमें पूरे लिथोलॉजी और इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ दैट इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिकल फील्ड आर प्राइमरीली द रेजिस्टिविटी पी, डाइलेक्ट्रिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर रॉक का डिफरेंट रॉक डेंसिटी होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, लिथोलॉजी अलग होती है, तो हर रॉक उस इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी को डिफरेंटली रिएक्ट करता है। और अगर वाटर होगा अर्थ सरफेस के नीचे तो वो डिफरेंट रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है वाटर इज़ हाईली रिएक्टिव टू द इलेक्ट्रिसिटी। सो इन दिस वे हमें एक पर्टिकुलर लिथोलॉजी और ग्राउंड वाटर को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। एंड इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन द लिथोलॉजी एंड मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर प्रेजेंस, कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ वाटर। सो जैसे कि मैंने बताया है कि जो पैरामीटर्स है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हमारी लिथोलॉजी पे, और नीचे अर्थ सरफेस के नीचे किस टाइप का इन्फ्लुएंस है, किस टाइप का कंटेंट है, किस टाइप की लिथोलॉजी है, रॉक टाइप कौन सा है, क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी मेथड इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट important geophysical method by which we can get the information about, or by which we can explore the groundwater or petroleum oil. So this is very good example of the geophysical method, that is electrical resistivity. सो अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आप बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड लिख सकते हैं, और आपको आपका आंसर पॉइंट वाइज लिखना है। और जो भी जब आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो उसका एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है, अदरवाइज़ पैराग्राफ में उतना कुछ इजीली समझ नहीं आता है। बट अगर आप क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज लिखोगे तो इट विल बी लुक नाइस एंड इट विल बी लुक वेरी इम्प्रेसिव। सो ट्राई करिए कि आप ये क्वेश्चन के आंसर सारे पॉइंट वाइज में लिखिए, और दिस इज़ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, जहाँ पे आप इजीली ये तीनों मेथड को एक्सप्लेन करके स्कोरिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। वैसे तो ये सारे मेथड बहुत डीपली दिए हुए हैं हर बुक्स में, बट आई विल ट्राई, और आई एम ट्राइड कि आपको इजी तरीके से मैं समझा पाऊँ, ताकि आप एग्ज़ाम में विथ योर ओन लैंग्वेज अच्छे से समझ के लिख सको। सो इट्स वेरी इजी और इजीली आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड के इतने ही पॉइंट्स हैं, और आप विद द हेल्प ऑफ नेट और विद द हेल्प ऑफ लेक्चर सीरीज़ आप खुद के ओन नोट्स बना सकते हैं, और अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट्स भी इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द सिस्मिक मेथड। सो नेक्स्ट है हमारा सिस्मिक मेथड, और सिस्मिक मेथड हम प्रीवियस अर्थक्वेक वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंड व्हाट इज़ द सिस्मोलॉजी? सिस्मोलॉजी इज़ द स्टडी अबाउट द अर्थक्वेक, एंड we can also define the seismic method, the science of
the earthquake, and the information or the identification about the earthquake is known as the seismology. So seismic इन्वेस्टिगेशन हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था. अब यहाँ पे सिस्मिक मेथड कैसे यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई द ग्राउंड वाटर और टू आइडेंटिफाई द ऑयल और पेट्रोलियम. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो सिस्मिक मेथड है वो विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक वेव्स, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जो हमारी अर्थक्वेक के टाइम पे रिलीज़ होती है, उसके थ्रू हम अर्थ सरफेस में क्या है, अर्थ सरफेस के नीचे क्या है, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो जैसे ही एनर्जी जनरेट होती है द सोर्स ट्रेवल एज वेव्स and these elastic waves are have different transmission times. So जैसा कि हमें पता है कि एक जनरेटेड पॉइंट होता है जहाँ पे सिस्मिक वेव्स जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ सडन वाइब्रेशंस. तो हम क्या करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ सडन वाइब्रेशंस जो वेव्स वहाँ से रिलीज होती है, वो वेव्स थ्रू आउट दी होल अर्थ और थ्रू आउट दी लेयर ऑफ द अर्थ पेनिट्रेट होते हुए नीचे जाती है और देन बैक टू द अर्थ. सो यहाँ पे जो हमारी सिस्मिक वेव्स होती है वो टू मेन फंक्शन में फंक्शन करती है. जो पहला है हमारा रिफ्रैक्शन सिस्मिक वेव्स एंड सेकंड है हमारा रिफ्लेक्शन सिस्मिक वेव. सो कुछ सिस्मिक वेव्स ऐसी होती है जो रिफ्लेक्ट करती है और कुछ सिस्मिक वेव्स ऐसी होती है जो रिफ्रैक्शन करती है. और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या है ये आपको अच्छे से पता है. रिफ्लेक्शन मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे अगर हमारी कोई वेव्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होके बैक टू दी इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर हो जाती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रोसेस. और अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई वेव कोई ऑब्जेक्ट पे टकराती है और वो ना के रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है बल्कि वो वेव्स नीचे की तरफ मुड़ जाती है बाय दी बेंडिंग देयर वेव्स. या तो वो खुद को बेंड कर लेती है या इंक्लाइन कर देती है, बट नीचे की तरफ वो मूव हो जाती है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन प्रोसेस. तो यहाँ पे जो हमारा सिस्मिक सर्वे है या सिस्मिक मेथड है ये टू बेसिक मेथड पे वर्क करता है, रिफ्लेक्शन सिस्मिक्टिविटी और रिफ्रैक्शन सिस्मिक्टिविटी. तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन अगर सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहाँ पे जब हम पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे हमें ग्राउंड वाटर एक्सप्लोर करना है वहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्शन सिस्मिक मेथड को यूज़ करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो हमारा मॉनिटर होता है वो सारे ग्राफ को मॉनिटर करता है, कैप्चर करता है. जैसे ही हम पर्टिकुलर एरिया में विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक जनरेटर अगर सिस्मिक वेव्स को रिलीज़ करते हैं आर्टिफिशियली, और वो जो इलास्टिक वेव्स होती है वो अर्थ सरफेस के नीचे धीरे धीरे लेयर बाय लेयर पेनिट्रेट होते हुए जाती है और एक ग्राफ बनता है. एंड देन रिफ्लेक्शन सिस्मिक है तो वो देन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट होके बैक टू दी ग्राउंड सरफेस आ जाती है. और जो हमारा मॉनिटर होता है वो इस प्रोसेस को कैप्चर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ और इन द इमेज ऑफ द ग्राफ. और उस ग्राफ की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे रिफ्लेक्शंस वेव्स थी वो किस किस ऑब्जेक्ट से टकराते हुए गई है. और अगर जैसे हमें पता है कि हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लिथोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन, उसका पैरामीटर सारे अलग होते हैं, हर किसी की एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन कैपेसिटी अलग होती है. तो अगर हम वाटर की बात करें तो वहाँ पर अगर सिस्मिक वेव्स रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, वहाँ पर वाटर है तो वो रिफ्रैक्शन होगा. तो ये सारे जो पैरामीटर्स है वो जो हमारा मॉनिटर होता है वो ग्राफ कैप्चर कर लेता है. और अगर नीचे हमें ग्राउंड सरफेस पे वाटर की क्वांटिटी या वाटर बॉडी देखने के लिए मिलती है तो जो सिस्मिक वेव्स हमने रिफ्लेक्टेड के थ्रू भेजा है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है बल्कि वहाँ पे रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो जाता है और वो ग्राफ में हमें दिख जाता है. तो उस बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस के नीचे हमें ग्राउंड वाटर मिलता है. ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ ये कि अगर रिफ्लेक्शन सिस्मिकसिटी हम नीचे इंक्लूड कर रहे हैं, नीचे पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो हमें लिथोलॉजी के बारे में भी आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि वहाँ पे हमारे सॉफ्ट रॉक है या हार्ड रॉक है. So in this way with the help of seismic generator और with the help of elastic waves हम easily identify कर सकते हैं particular rock formation को, ground water को, oil and petroleum को. रिफ्लेक्शन सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन और मेथड की बात करें तो यहाँ पे भी सेम ही फिनोमेना अप्लाई होता है. अगर सरफेस के नीचे कोई हार्ड रॉक होगा तो वहाँ पे मे बी अगर उस पर्टिकुलर रॉक की कैपेसिटी होगी रिफ्लेक्शन की तो वो रिफ्लेक्शन देगा, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वो रिफ्रैक्शन देगा. सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दी
chemical composition or lithology of that rock formation, whether it will be reflection seismic or whether it will be the refraction seismic method. So on the basis of these, we can easily identify or explore the groundwater. So seismic method is also important to know the about the beneath the earth surface of the rock. So this is all about the seismic investigation. Now we will see the diagram of the seismic investigation, that how the seismic investigation are work. So this is the diagram of seismic investigation. So this is the diagram of seismic investigation. So this is a recording truck, और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है हमारा मॉनिटर होता है जो ग्राफ को कैप्चर करता है, मॉनिटर करता है जैसे ही सिग्नल उसको मिलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है ये शूटर पॉइंट है जहाँ से हम पर्टिकुलर सोर्स से सिस्मिक वेव्स जनरेट करते हैं आर्टिफिशियली, और यहाँ से सारी वेव्स जो है अर्थ, ये लेयर है अर्थ की, सो लेयर बाय लेयर धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ये पेनिट्रेट होते हुए नीचे जाती हैं। और यहाँ पे जिस टाइप की रॉक फॉर्मेशन होगा, जिस टाइप की लिथोलॉजी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दीज या तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा सिस्मिक वेव्स का या फिर वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ लिथोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन एंड रॉक टाइप वी कैन डिसाइड कि वहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिफ्लेक्शन होगा। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया शूटर पॉइंट से, ये शूटर पॉइंट है, ये शूटर पॉइंट से हम सिस्मिक वेव जनरेट करते हैं आर्टिफिशियली, और ये थ्रू दी अर्थ लेयर बाय लेयर नीचे की तरफ जाती है, और जिस टाइप का यहाँ पे उसको रॉक फॉर्मेशन मिलेगा वो वैसे ही अगेन बैक टू दी ग्राउंड सरफेस आती है। और ये रेडियो सिग्नल्स होते हैं यहाँ पे जो, और यहाँ पे जियोफोन होता है जो वेव्स को कैप्चर करता है। वेव्स को कैप्चर करने के बाद वो मॉनिटर में सेंड करता है, और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम पर्टिकुलर एरिया को देखते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। सो ये जो है सेक्शन इंटरप्रिटेटेड जियोलॉजिकल सेक्शन है, ये बेसमेंट है। यहाँ पर हमको जैसे ये ग्राफ हमको दिया हुआ है, सो ये जस्ट एन एग्जांपल है ग्राफ का। तो यहाँ पे हमको ग्राफ में देख सकते हैं कि ये हमारा बेसमेंट है, और फिर कुछ टाइम के बाद कुछ लेयर में हमको कार्बोनेट रॉक्स मिले, फिर उसके ऊपर हमको शेल मिला, देन उसके ऊपर हमको सैंडस्टोन मिला। सो इस टाइप के ग्राफ हमको देखने के लिए मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक वेव्स और सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन। सो यहाँ पे इस तरीके से आप डायग्राम भी एग्ज़ाम में निकाल सकते हो, और ये ग्राफ भी एग्ज़ाम में निकाल सकते हो ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके, और इट विल बी लुक इम्प्रेसिव, ताकि आपको मार्क्स भी अच्छे मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा शूटर पॉइंट है जहाँ से हम सिस्मिक वेव जनरेट करते हैं, और ये धीरे धीरे थ्रू दी बाउंड्रीज और लेयर्स ऑफ द अर्थ नीचे पेनिट्रेट होती है, और जिस टाइप की इसको लिथोलॉजी मिलती है वो डिपेंड करता है कि रॉक टाइप कैसा है। तो मे बी इट्स टोटली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द रॉक। तो या तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होगा, और अगर उसको वाटर बॉडी मिलेगी तो वो रिफ्रैक्शन होगा, और वो सारी चीज़ जो होती है थ्रू दी जियोफोन वो सिग्नल्स भेजती है मॉनिटर्स को, और मॉनिटर कैप्चर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पूरे इन्फॉर्मेशन मिलती है, और दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ग्राफ। तो कि हमको मिला है कि कौन से कितने किलोमीटर पे हमको कार्बोनेट रॉक मिल रहे हैं, कितने किलोमीटर पे हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक मिल रहे हैं। सो इस टाइप के ग्राफ हमको मिलते हैं सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन से, और जहाँ पे हमको ये भी पता लग जाता है कि हमारे अर्थ सरफेस के नीचे वाटर है या नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द ग्राउंड वाटर और द पेट्रोलियम ऑयल। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द मैग्नेटिक मेथड। सो दिस इज़ द लास्ट मेथड ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक सर्वे में हम किस टाइप की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन। So in magnetic survey, the intensity of the earth magnetic field along with the field produced by the magnetic material, and those magnetic materials are the rock in the earth. So basically जो हमारा magnetic field होता है वो totally depend करता है हमारे अर्थ सरफेस पे, हमारे अर्थ सरफेस में किस टाइप का रॉक है, किस टाइप की लिथोलॉजी है, उस पर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इन द अर्थ इज मेजर्ड अलॉन्ग द प्रोफाइल अक्रॉस अ जियोलॉजिकल बॉडी, और
ग्रिड पैटर्न। सो बेसिकली जो हमारा मैग्नेटिक सिस्टम होता है इस टोटली डिपेंड होता है हमारे अर्थ सरफेस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे, मतलब किस टाइप के वहाँ पे रॉक हमें देखने के लिए मिलते हैं, किस टाइप का फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ है ये डिपेंड करती है हमारे उस पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन पे। तो कुछ इस टाइप का सेटअप हम करते हैं जब हमें मैग्नेटिक सर्वे करना होता है। तो ये हमारा मैग्नेटिक सर्वे है जहाँ पे हम कुछ इस टाइप के इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करते हैं उस अर्थ सरफेस के ऊपर, और हम एक मैग्नेटिक एनामोलीज बनाते हैं, मैग्नेटिक सिग्नल्स भेजते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया है कि डिफरेंट टाइप्स के रॉक होते हैं, हर एक रॉक की डेंसिटी अलग होती है, लिथोलॉजी अलग होती है, उसके फिजिकल पैरामीटर्स अलग होते हैं, और इवन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है रॉक की वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के वहाँ के रॉक का किस टाइप का मैग्नेटिक रेशो है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे कुछ इस टाइप का मैनेजमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोड सप्लाई किए हमने और इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, और ये अरेंजमेंट से हम इलेक्ट्रोड को पासिंग थ्रू दी अर्थ सरफेस होता है। और यहाँ पे जैसे कि सिस्मिक वेव्स में हम लेयर बाय लेयर इलास्टिक वेव्स को और सरफेस के नीचे पेनिट्रेट कर रहे थे, वैसे यहाँ पर भी हम इसी तरीके से पेनिट्रेट करते हैं, बट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड होता है। वहाँ पे हमको सिस्मिक सोर्स या फिर शूटर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से सिस्मिक वेव जनरेट होती है आर्टिफिशियली, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड की हेल्प से मैग्नेटिक वेव्स और मैग्नेटिक सर्वे को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये हमारी अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक रॉक्स है सच एज वॉल्केनिक रॉक्स। सो जैसे कि हम जानते हैं हमारे तीन टाइप के रॉक होते हैं, वॉल्केनिक रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स एंड हाइपरबेसल रॉक। सो जो वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं वो मैग्नेटिक रॉक्स होते हैं। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है या वाइवा में भी हो सकता है कि कौन से टाइप के रॉक्स होते हैं जिसमें आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिल सकती है। तो दोज रॉक्स आर वॉल्केनिक रॉक्स विच हैव दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो जो वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं उनमें हमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिलती है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि वॉल्केनिक रॉक्स हैव दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और वॉल्केनिक रॉक्स इज़ दी मैग्नेटिक रॉक्स। ठीक है, तो हम ये चीज़ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे वॉल्केनिक रॉक्स है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, मैग्नेटिक रॉक बोलते हैं जिसे। और ये हमारा जो है ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे ये दिख रहा है आपको, ये मैंने अरेंजमेंट किया है। ठीक है, ये अरेंजमेंट है, कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू दी अर्थ सरफेस। ये हमारा इलेक्ट्रोड मैनेजमेंट है, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये दिख रहा है आपको, ये हमारी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होता है, मैग्नेटिक एनोमली कॉज्ड बाय द फॉल्ट। यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनोमली होती है विद द हेल्प ऑफ फॉल्ट हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ मूवमेंट होता है, प्लेट मूवमेंट्स होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे एक फॉल्ट जनरेट होता है और यहाँ पे जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉल्ट की बात की, बट हम समटाइम्स हम इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करते हैं टू आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और टू आइडेंटिफाई द इन्वेस्टिगेशन अबाउट द ग्राउंड सरफेस और ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन। सो यहाँ पे हम पर्टिकुलर सेटअप करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बीच में फॉल्ट दिया हुआ है डायग्राम में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉल्ट होता नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्टली सेटअप करते हैं। और अगर इनकेस फॉल्ट आता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है यहाँ पे। ठीक है, देन कुछ इस टाइप की मैग्नेटिक एनोमली इज ऑब्जर्व्ड बाय द एयरक्राफ्ट। सो दिस इज डिफरेंट पॉइंट, दिस इज द डिफरेंट पॉइंट। तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है और यहाँ पे जो है मैग्नेटिक एनोमली इज ऑब्जर्व बाय द एयरक्राफ्ट। सो इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड एयरक्राफ्ट। सो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर डालने के लिए, लिखने के लिए ही आते हो, बाकी बहुत कम स्टूडेंट है जो पूरा लेक्चर अटेंड करते हैं। आप अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो फैकल्टी को भी पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए। वैसे तो बहुत बहुत कम टाइम बचा है, अब तो पूरे यूनिट्स हो चुके हैं,
लास्ट यूनिट बचा है हमारा, और अब तक के तो बहुत कम स्टूडेंट है, कम इन द सेंस बहुत एक या दो स्टूडेंट है जो क्वेश्चन के आंसर करते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज मैक्सिमम और मोर देन 90% स्टूडेंट्स आर जस्ट केम टू राइट दी रोल नंबर, अदरवाइज और कुछ नहीं। ठीक है, सो बहुत कम स्टूडेंट है जो पूरा लेक्चर अटेंड करते हैं। देखो ये ऑनलाइन क्लास है एंड आपको एग्ज़ाम भी ऑनलाइन देना है, तो आई नो यू आर ऑल्सो डूइंग द चीटिंग ऑल्सो। सो लॉस इसमें हमारा नहीं है, कोई भी फैकल्टी का लॉस नहीं है, इसमें लॉस आपका ही है। बिकॉज अभी आप शॉर्टकट तो मार लोगे, बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे और ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो उस टाइम पे आप चीटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सो जब तक कि आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो फैकल्टी को भी पढ़ाने में समझाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। सो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है और इस तरीके से हम ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सर्वे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन एरिया है। यहाँ पे हमें अर्थ सरफेस देखने के लिए मिलती है। ये हमारी मैग्नेटिक एनामोली है। ठीक है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोड करंट पास करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने के लिए मिलती है, तो कुछ इस टाइप की एनामोलीज हमें अर्थ सरफेस में देखने के लिए मिलती हैं। मैग्नेटिक एनामोली रिड्यूस टू द पोल। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का मैग्नेटिज्म हमको अर्थ सरफेस में देखने के लिए मिलता है। दिस इज़ ऑल्सो दी एनामोली और मैग्नेटिक ग्राफ, ये अर्थ फील्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ग्राफ है, ऊपर जा रहा है देन नीचे आ रहा है। सो ये इंडिकेट करता है हमारा अर्थ फील्ड डायरेक्शन एंड रिड्यूस टू पोल एनामोली। और ये वाला जो डायरेक्शन है जहाँ पे अर्थ नीचे बेंड हो रहा है, तो ये हमारा रिड्यूस टू पोल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और ये जो हमारा कर्व है जो ऊपर की तरफ ऐसे बेंड होते हुए जाता है, ये हमारा फील्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये हमारे मैग्नेटिक सर्वे सोर्स हो गया, और ये हमारा हो गया पोल, रिड्यूस्ड पोल एनोमली। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ हमें कुछ मिलता है पर्टिकुलर मैग्नेटिक सर्वे से, और विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वे वी कैन आइडेंटिफाई द लिथोलॉजी जो अर्थ सरफेस के नीचे हमें मिलती है, और ग्राउंड वाटर को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सो नाउ नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटी सर्वे, और ग्रेविटी सर्वे इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अ ग्रेविटी सर्वे इज़ एन इंडिकेटर or surface means of calculating the density property of subsurface material. Higher the gravity values, the denser the rock beneath the earth surface. So this is a very important point. Higher the gravity values मतलब जितना ज़्यादा ग्रेविटी वैल्यू होंगी, मतलब आप समझ लीजिए कि उतना ज़्यादा डेंसर होगा रॉक सरफेस और अर्थ सरफेस। डेंसर द रॉक ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा ग्रेविटी एनोमली हमको मिल रही है उस पर्टिकुलर एरिया से, उस पर्टिकुलर ग्राउंड सरफेस से, उतना ज़्यादा हम समझ लेना चाहिए कि उतना ज़्यादा जो हमारा अर्थ सरफेस के नीचे जो रॉक है वो डेंस है और टोटली डेंसली कंपोजिशन को कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ग्रेविटी सर्वे होता है वो इनडायरेक्ट कैलकुलेटिंग होता है डेंसिटी प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ऑफ द रॉक। मतलब जो हमारे अर्थ सरफेस के नीचे जो रॉक फॉर्मेशन है उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस के नीचे किस टाइप का मटेरियल है, या वो लिक्विड है, सॉलिड है, किस टाइप का रॉक है। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हायर द ग्रेविटी वैल्यूज डेंसर द रॉक बीनीथ द अर्थ सरफेस, मतलब जितना ज़्यादा आपकी ग्रेविटी की वैल्यू होगी, समझ लीजिए कि उतना ज़्यादा आपका डेंसर होगा रॉक। ठीक है, सो ये यहाँ पे इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटोमीटर। ठीक है, ये ग्रेविटोमीटर हम पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम यहाँ पे ये रख देते हैं, दिस इज़ अ ग्रेविटोमीटर, दिस इज़ अ ग्रेविटोमीटर। तो इस तरीके से हम सेटअप करते हैं ग्रेविटोमीटर का। और यहाँ पे ये पूरे जो बटन्स है, विद द हेल्प ऑफ दीज बटन्स जो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर
with the help of density of the rock. So जो ग्रेविटी मीटर होता है, ग्रेविटोमीटर होता है, इट्स टोटली डील्स ऑन द डेंसिटी, ठीक है। तो ये डेंसिटी में डील करता है, मतलब कोई भी रॉक फॉर्मेशन चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो, वो उस पर्टिकुलर चीज़ का डेंसिटी कैलकुलेट करता है और हमें ये ग्राफ देता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में लिक्विड है और सॉलिड है। अगर लिक्विड है तो वो वाटर है या ऑयल है, और अगर सॉलिड है तो हमें किस टाइप का रॉक नीचे मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको ये ग्रेविटोमीटर हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई दी रॉक फॉर्मेशन और दी ग्राउंड वाटर। और ये जब पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा इंफॉर्मेशन, तो ये इस टाइप का एनोमलीज देता है। अ लो ग्रेविटी एनोमलीज ड्यू टू एन इनफिल्ड सॉल्यूशन फीचर्स। तो ये जो सरफेस दिख रहा है हमको, ठीक है, ये हमारा लो ग्रेविटी एनोमली है, जहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि इनफिल्ड सॉल्यूशन फीचर है, मतलब यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड सॉल्यूशन नहीं है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो विद दी हेल्प ऑफ दिस ग्राफ भी हम बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हमको ग्राफ रीडिंग आना चाहिए, हमको सैटेलाइट इमेज को रीड करते आना चाहिए, अंडरस्टैंड करते आना चाहिए, एरियल फोटोग्राफ को अंडरस्टैंड करते आना चाहिए, तभी जाके हम ये पर्टिकुलर चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर ग्राफ में कुछ इस टाइप का शेप आता है या इस टाइप का अपीयरेंस आता है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो है ये लो ग्रेविटी एनोमली है, जो कि बनी हुई है हमारी इनफिल्ड सॉल्यूशन फीचर से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डिक्रीजिंग ग्रेविटी वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरबर्डन थिकनेस। तो यहाँ पे जो है देख रहे हो आप, दो अलग अलग दूर में हमें एनोमलीज मिली है। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा स्पेस है बिटवीन टू एनोमलीज, ठीक है। तो ये जो लाइन्स है इसको हम एनोमलीज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है बिटवीन टू एनोमलीज। तो ये हो रहा है डिक्रीजिंग ग्रेविटी की वजह से, डिक्रीजिंग ग्रेविटी वैल्यूज ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरबर्डन थिकनेस। मतलब यहाँ पे जो होगे रॉक, वहाँ का जो बर्डन होगा, उस रॉक का जो प्रेशर होगा वो वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई हुआ होगा, और वहाँ की जो है थिकनेस पे इंक्रीज इन ओवरबर्डन थिकनेस की वजह से जो इंक्रीजमेंट और प्रेशर आया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्रेविटी वैल्यू हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये जो ग्राफ है ये रीड करते आना चाहिए, बट ये सारी प्रोफेशनल टर्म्स है, एज ए स्टूडेंट हम इतने डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। सो ये सारे प्रोफेशनल टर्म्स है कि ऐसा अपीयरेंस क्यों है और यहाँ पे गैप है, तो ये क्या इंडिकेट करता है। दीज आर ऑल दी प्रोफेशनल टर्म जो ग्रेविटोलॉजिस्ट होते हैं वो इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये ग्राफ को आइडेंटिफाई पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हम नहीं बता सकते, बट आप एग्ज़ाम में इतना ही लिख सकते हैं कि ग्रेविटी सर्वे क्या है, ग्रेविटी सर्वे किस चीज़ में डील करता है, किस टाइप के रॉक फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिल सकती है, किस टाइप की एनोमलीज हमको देखने के लिए मिल सकती है। और विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटोमीटर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हमारा ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन का, ठीक है। सो दिस इज़ दी ग्रेविटी सर्वे। और ग्रेविटी सर्वे अगर डील करती है डेंसिटी प्रॉपर्टी में, और डेंसिटी प्रॉपर्टी आती है हमारी सब सरफेस मटेरियल, मतलब रॉक फॉर्मेशन और लिथोलॉजी। सो जितना ज़्यादा ग्रेविटी वैल्यू होंगी उतना ज़्यादा डेंसर होगा रॉक सरफेस और रॉक फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ग्रेविटी सर्वे। So this is all done. We have seen the second part of the site investigation of groundwater exploration, and the second part in which we have seen the three main type of investigation or survey, that is seismic survey, magnetic survey, gravity survey और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्वे। सो ये चारों सर्वों को हमने अच्छे से देखा है, और ये सारे जो जियोफिजिकल मेथड है इसके हेल्प से हम ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर कर सकते हैं इन डे टू डे लाइफ, एंड दीज आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल प्रोसेस और टेक्निक टू आइडेंटिफाई द ग्राउंड वाटर और द पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So that's it, this is the end of the lecture, and we have completed our site investigation or groundwater exploration, in which we have seen the surface method and subsurface method. And surface method जहाँ पे हमने देखा है remote sensing technique और geological field mapping and geological detail
टेक्निक, और जहाँ पे सब सरफेस में हमने देखा है जियोफिजिकल मेथड, जहाँ पे हमने 4 सर्वे देखा है, ग्रेविटी सर्वे, मैग्नेटिक सर्वे, सिस्मिक सर्वे और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्वे। तो ये सारे सर्वे जो है ये जियोफिजिकल मेथड है और सब सरफेस मेथड में आता है। और सरफेस मेथड में हमने 2 देखा है इसके प्रीवियस लेक्चर में, रिमोट सेंसिंग और जियोलॉजिकल डिटेल्स ऑफ फील्ड वर्क। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड यहाँ पे हमारा 5th यूनिट कंप्लीट होता है। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट द लास्ट यूनिट ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।